Okay, so last time we have discussed about the forest, and now I am discussing about we are discussing about the layers of the forest. So अब ये जो layers of the forest वाला part है, ये कोई मतलब कुछ अलग part नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया, forest के layer create किए, ठीक है। जैसे टॉप मोस्ट लेयर को हम बोलेंगे emergent layer, उसके नीचे वाला लेयर कैनोपी, उसके नीचे वाला लेयर अंडर स्टोरेज लेयर, एंड एकदम जो बॉटम वाला लेयर होता है इसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर डिवाइडिंग द लेयर्स। सो एमरजेंट लेयर जो कि एकदम टॉप मोस्ट लेयर है, कौन सा वाला, ये वाला। यहाँ पे क्या होता है ये हम देखेंगे। सो एमरजेंट लेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर एंड टॉलेस्ट लेयर इन द फॉरेस्ट, ठीक है, ये सबसे टॉप लेयर पे रहेगा। देन ह्यूज ट्रीज एंड दैट राइज अबव ऑल द ट्री इन द फॉरेस्ट, ये ऐसे ही जो कि सबसे टॉल वाले ट्रीज होंगे यही यहाँ पे रीच कर पाएंगे, ठीक है। देन they receive maximum sunlight, and the most of the trees in this layer have broad leaves, hardwood and usually evergreen। और यहाँ के जो ट्रीज़ है ये हमेशा ग्रीन रहेंगे क्योंकि इनको लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलेगा, बिकॉज ऑफ दैट दे कैन मेक द फूड एंड दे कैन ग्रो वेल, okay, that's why it is evergreen। Now second layer is that canopy layer। Canopy layer, as you see in the picture, canopy is the second highest layer, okay। Then it is the almost dense, and it consists of mainly crown means branches and leaves of the tallest trees, and the common trees, the canopy, are called as dominant trees. Then certain plants, especially climbing vines and epiphytes, may grow in the canopy. So epiphyte, then saprophyte we have discussed in the previous lessons. Now as a result, the produces more food than the other layer, and many animals live in this area, such as fruit eating birds, insect, mammals, and the leaves or the fruit live in the canopy. So I hope you are getting the canopy. Then next part is that understory layer. So what is the understory layer? It includes ट्रीज़ विच आर शॉर्टर दैन दोज ऑफ द कैनोपी। कैनोपी से जो शॉर्टर रहेंगे वो ट्रीज़ यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, ये वाला ट्रीज़ इट इज़ सम वॉट शॉर्टर दैन द कैनोपी, दैट्स वाई इट इज़ लिव्स इन द अंडर स्टोरी लेयर। देन it is a giant and tall tree. There are smaller trees below which are the shrubs and all the green grasses. The herbs form the lowest layer because the understory grow in the shade. It is not a productive and the canopy as the canopy. Why? Because जो अंडर स्टोरी लेयर है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सनलाइट नहीं आता है, इसकी वजह से ये ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है। सनलाइट आएगा तभी तो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे और अपने प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे सनलाइट जो है ये नहीं है क्योंकि ये शेडेड वाला पार्ट है, कैनोपी के अंडर में रहता है। देन लास्ट इज़ द फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर हमको पता है, जैसे हमारे घर का फ्लोर है, सो वैसे ही फॉरेस्ट का जो फ्लोर है इसको फॉरेस्ट फ्लोर बोलेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो डेड लीव्स जो कि प्लांट्स के गिर रहे वो होंगे, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, देन अर्थवर्म्स, बहुत सारे फंगाई, इंसेक्ट, स्पाइडर्स, ये सब यहाँ पे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह यहाँ पे लिव करेंगे। देन फॉरेस्ट जो फ्लोर है ये इट इज़ कवर्ड विद द फॉल्स, seed, herbs, fruit, twigs, and the decaying leaves. All these parts are present on the forest floor. Now these microorganisms are breaking down these parts, this dead part, and uh, it produces the some new chemical, and it is useful for the growth of the new plants, ठीक है। So this uh, in that layer some of the living organisms are lived, such like that gorilla, leopard, then different tapirs, tigers, elephant, ये सब animals यहाँ पे रहेंगे, okay। So that all related with the layers of the forest। And now we are discussing the next concept, that is the independence of the plant and the animal। So independence of plant and animal, so that is the most important part. We are already know that most of the animals are or we can say all of the animals are depend on the plants. Why? Because we are the consumers and plant are the producers.
सो वाई दे प्रोड्यूसर्स, वाई वी आर कंज्यूमर, ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया था. Because they can do the photosynthesis and they can make their own food, because of that they are known as producers, and we does not have green pigment, and we are not able to produce the food. ठीक है, that's why we are known as a consumers, and we are depending on a plant for food. ठीक है, हमारे ऐसे कोई बॉडी के पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे हमको ऐसे फ्रूट वगैरह लगता है. ठीक है, या फिर हमारा कोई बॉडी का पार्ट ऐसे ग्रीन कलर का नहीं है जहाँ से हम फोटोसिंथेसिस करके हमारा खुद का फूड बनाते हैं. सो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए हम क्या है, कंज्यूमर्स हैं. सो कंज्यूमर्स को भी डिवाइड किया गया अलग अलग पार्ट में, वो हम देखेंगे. उसके पहले हमको देखना है फूड चेन. सो फूड चेन क्या होती है, मतलब जैसे मान लो कोई एनिमल, ये वाला ग्रास है. ठीक है, ग्रास क्या है, ग्रास एक ग्रीन कलर का प्लांट है. वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, खुद का फ्रूट खुद बनाएगा. बट इसको खाएगा कौन, ग्रास होपर. फिर ग्रास होपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा ईगल, ईगल फिर डेथ हो जाएगा ईगल का. फिर डेथ होने के बाद ईगल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे और इसको कुछ केमिकल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और ये केमिकल कंपाउंड फिर से यूज़ में आएगा किसके, ग्रास के ग्रोथ के लिए. तो ये बन गया फिर से एक साइकिल, और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा. सो दैट इज़ नथिंग बट द फूड चेन. ठीक है, आपके बुक में स्नेक तक दिया, ठीक है, बट आगे भी मतलब ऐसा है, पूरा चेन इसका चलता रहेगा. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंज्यूमर. सो कंज्यूमर जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर. ठीक है, सो हर्बीवर्स, कार्निवर्स आपने सुना होगा. तो हर्बीवर्स क्या करते हैं, दे आर टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट्स. ठीक है, फॉर फूड. सो फूड के लिए टोटली डिपेंड किस पे रहेंगे, वो प्लांट पे रहेंगे. उसको हम हर्बीवर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल डियर, हॉर्स, रैबिट, एलिफेंट, आई थिंक. सो ये सब जो है हर्बीवर्स है. ठीक है, दे आर डिपेंड ऑन, डायरेक्टली डिपेंड ऑन और कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द प्लांट्स. ठीक है, नाउ इसके बाद में आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर. सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रॉग. फ्रॉग को हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर. क्यों, क्योंकि फ्रॉग डिपेंड है ग्रास होपर पे और ग्रास होपर डिपेंड है ग्रास पे. ठीक है, तो इस तरह से ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया. फिर टर्शरी कंज्यूमर यहाँ पे कौन है, स्नेक है. So in that way primary, secondary and tertiary consumers are there. Now decomposer. Decomposer क्या है आपको पता ही. Now फूड वेब. फूड वेब क्या चीज़ है, जैसे अब देखो ह्यूमंस का एंट्री हो गया यहाँ पे फूड वेब में. ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस आर नथिंग बट द ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स मतलब क्या, ये प्लांट को भी खाएगा, एनिमल को भी खाएगा. ठीक है, दैट्स वाई ये क्या कर रहा है, दो 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 पॉइंट से कनेक्शन कर रहा है, प्लांट से भी और हमारे दूसरे एनिमल से भी. ठीक है, सो दैट्स वाई ये क्या किया इसने, एक पार्ट से कनेक्ट नहीं है. ठीक है, दो तीन पार्ट से कनेक्ट है. सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, एक फूड वेब बन गया, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ठीक है, सो जैसे आपको एक दूसरा एग्जांपल आपके बुक में यहाँ पे दिया, देखो ये वाला. ठीक है, सो आपको दिख रहा होगा कौन सा वाला देखें, हाँ, ग्रास होपर. सो ग्रास होपर खाएगा किसको, प्लांट को. ये वाले दो प्लांट को भी खाएगा. देन ग्रास हॉपर को माउस भी खाएगा, रैट भी खाएगा, फ्रॉग भी खाएगा. ठीक है, सो इस तरह से ये एक इंटरकनेक्टेड वेब बन गया. तो इसको हम बोलेंगे फूड वेब एंड इट इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स. नाउ एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन. अब हमको देखना है कि एनर्जी कैसे फ्लो होता है फूड चेन में. यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है वो क्या है पता है, जैसे देखो ग्रास के अंदर कोई ना कोई एनर्जी है, इसलिए हम उसको खा रहे हैं. ठीक है, हम मतलब जो भी खाते हैं, ग्रास कौन खाता है, मतलब हर्बीवोर्स. ठीक है, सो इसके अंदर कोई एनर्जी है तभी तो वो खा रहे हैं, उनको एनर्जी मिल रहा है. फिर ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर में. फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई खाएगा, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा किसको, टर्शरी कंज्यूमर को. मतलब ये एनर्जी फ्लो हो रहा है ऐसे. ठीक है, बट एक्चुअल में जो प्लांट है इसको एनर्जी मिल कहाँ से रहा है, तो इसको मिलेगा डीकम्पोजर से. ठीक है, जो डीकम्पोज्ड होके जो पार्ट एज ए न्यूट्रिएंट्स लेगा, इससे इसका ग्रोथ होगा. दूसरा पार्ट यहाँ पे आता है सनलाइट. ठीक है, तो सनलाइट जो है वन वे ये हमको एनर्जी देता है. सन हमारे से कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता. ठीक है, सो दैट्स वाई the basic source of energy is the sun. And now
this energy flow in such like that from the producers to herbivores, herbivores to carnivores, carnivores to omnivores or tertiary consumer, in that way. Okay, so I hope all of you are getting this flow of energy. Now थर्ड पॉइंट इज़ दैट बैलेंस इन द नेचर. सो अब हमको पता ही है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर चेन, ठीक है. सो कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मेड बाय अस. हम क्या करते हैं, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है. सो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ द हार्मफुल एंड ग्रीन हाउस गैस इसको बोला जाता है, ठीक है. मतलब ये एक हार्मफुल गैस है, ठीक है, बट दैट इज़ क्रिएटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द एनिमल्स. बट ये जो है ना, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था, ठीक है, और सभी तरफ ग्रीन हाउस गैसेस होने चाहिए थे वगैरह वगैरह, ये सब होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली. वाई? बिकॉज यहाँ पे कोई ना कोई बैलेंस सिस्टम चल रहा है. कौन सा चल रहा है कि हमारे साथ साथ हमारे प्लांट्स भी है. तो प्लांट्स करते क्या है, प्लांट का पता ही होगा आपको, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और वो हमको देते हैं ऑक्सीजन और लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो इसके वजह से एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है. हम जो रिलीज़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑब्जर्व कौन कर रहा है, प्लांट, और इसके वजह से एक बैलेंस बनता है नेचर में. सो आई होप यू आर गेटिंग दिस नाउ. अब हम देखेंगे प्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट. सो प्रोडक्टिव फंक्शन मतलब क्या, फॉरेस्ट से हमको क्या मिल रहा है. So we are getting different type of the raw materials such like that the timber, wood pulp, plywood. So फर्नीचर के लिए जो भी हमको यूज़ करना है, तो ये सब हम लेते हैं एज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट. नाउ वुड वी आर गेटिंग, इट इज़ द यूनिवर्सल फूड. यूनिवर्सल फूड इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इससे हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है. नाउ it is used in various purposes such like that the most wood are produced in the construction houses, making agriculture implementation, ब्रिजेस, स्लीपर्स, ये सब सारे फर्नीचर्स, ये सब हम बनाने के लिए वुड का यूज़ करते हैं. नाउ फाइबर्स, फाइबर्स भी हमको मिलता है कहाँ से, फॉरेस्ट से. फाइबर मतलब फाइबर्स मतलब जैसे जूट जो होता है ना, जूट. सो जूट का एक प्लांट है, वहाँ से हमको फाइबर्स मिलते हैं. जैसे हम एक बोलते हैं बोरा, ठीक है, प्लांट के फाइबर से बनाते हैं. सो दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस. नाउ गम्स एंड सेरिन रेजिन्स, ये भी हमको मिलता है फॉरेस्ट से. तो गम्स जैसे फेविकॉल ये सब है ना, तो ये सिंथेटिक है, इसमें भी हम कहीं ना कहीं इसका यूज़ करते हैं, ठीक है. किसका, नेचुरल गम्स का. रेजिन भी इससे बनता है. नाउ फॉडर एंड ग्रेजिंग्स. सो फॉडर, leaves and grazing facility of the rural animals, and the livestock depends upon the forest grazing and leaf fodder supply. Leaf fodder of the several tree species is almost nutritious as that of the agriculture fodder crop. मतलब जो है एनिमल्स है, इनको हमको क्या देना पड़ता है, फूड देना पड़ता है. तो ये भी हम प्लांट से ही लेते हैं, हम खुद बनाते नहीं है एनिमल का जो फूड है वो. देन एडिबल प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स. एडिबल प्रोडक्ट्स से हमको कहाँ से क्या क्या मिलता है, फ्रूट, फ्लावर, सीड, ट्यूबर्स, ये सब हमको मिलते हैं फॉरेस्ट से. देन मेडिसिनल प्लांट भी हमको मिलता है कहाँ से, फॉरेस्ट से. फॉर एग्जांपल नीम, आंवला, एलोवेरा, ये सब चीज़ें जो है आप कॉस्मेटिक्स में आप देखेंगे, तो ये सब भी हमको मिलता है कहाँ से, फॉरेस्ट से. सो आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल टॉपिक्स. नाउ द रिमेन पार्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास.